اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق نمبر 3 میں اس کے پہلے حصے کے اندر خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور بہت سی دعائیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے لیے کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہمارے جیسے لوگ، عام لوگ بڑی آسانی سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے قرآن ہی سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں قرآن کے سیکھنے کے حوالے سے، تو آئیے اس آیہ مبارکہ کو سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ حالا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑی؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ غور کرنے کی کتاب ہے، غور سے پڑھنے کی کتاب ہے، اور تب وہ تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو، ہم اس کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب زندگی میں لانے کے لیے، یہ ایک طرف رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ سجا کر کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اور ڈسٹ کے اندر رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ روزانہ ہماری زندگی کے ہر لمحہ، ہر پہلو کا حصہ بننے والی اور اس میں ہمیں رہنمائی عطا کرنے والی کتاب ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کے اور الفاظ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ ضمائر پڑھیں گے، اور ضمائر کے پڑھتے ہی آج ایک بڑی مزے کی چیز ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک کا تعلق قرآن کے تقریباً ہر لائن کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے قرآن ہمارے لیے ایک اجنبی کتاب تھی، ہم اس کے بارے میں کچھ چیزیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، اور جب دیکھتے تھے تو پتہ نہیں تھا، بس پڑھتے رہتے تھے۔ تو آج ایک خاص تعلق قائم ہوگا کہ آپ جیسی آج کی کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے، کوئی بھی صفحہ آپ قرآن کا کھولیں گے، آپ کو وہاں پر اس کی تقریباً ہر لائن میں آپ کو اس سے شناسائی ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ تو آج پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ کتاب کھول کر آپ کو اس میں سے مثالیں دوں گا۔ تو پھر انشاءاللہ نقطۂ تعلیم، اور آج کا سبق بڑا امپورٹنٹ ہے، 1 گھنٹے کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ تو پورے شوق سے، غور سے، توجہ سے سب کام چھوڑ کر بیٹھیے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ نے قرآن میں آنے والے 3451 جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لینا ہے۔ تو اتنا بڑا ٹارگٹ اگر 1 گھنٹے میں اچیو کرنا ہو، پھر توجہ تو چاہیے ہوگی نا آپ کی۔ تو آج کی کلاس پڑھتے ہی ہمارے 3 اسباق پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ صرف 3 سبق پڑھے اور ہم قرآن کے 12,000 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کھول کر اس میں دیکھیں کہ آیا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسے بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ جو ہم نے پڑھا تھا للہ، یہ قرآن میں ہے یا نہیں، باللہ آپ کو اس میں نظر آیا یا نہیں۔ تو جو چیزیں ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن میں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں اور خود سے اس کا ترجمہ کریں۔ اور آئیے آج کا سبق چونکہ ہم نے فردر پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کی آیات، تو پہلے ان کو سن لیتے ہیں۔ جب آپ یہ سنیں تو جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں لائیں، اس کی حیت، الفاظ کے ٹکڑے، اس کے معنی، اور جو نئی آیات ہیں انشاءاللہ اس پر بھی غور کریں۔ وہ آج سوری یہ برائے مہربانی آپ میں سے کوئی نہیں کرے، میں خود اس کو کرتا ہوں جی۔ اچھا سوری، جسٹ اے منٹ، لیٹ می ریزیوم دی۔ ہو گئی ہے سر، ریکارڈنگ سٹارٹ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، جسٹ گیو می اے منٹ، میں آپ کا بھی جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے
मालिक यौम द्दीन, मालिक है दिन का बदले के, मालिक का मतलब मालिक, यौम दिन, अयाम उसकी जमा, और अद्दीन, अद्दीन के दो माना है। यहाँ पे माना आया है बदला, बदला, रिजल्ट, नतीजा, आउटपुट, ठीक है। तो इसीलिए आप अक्सर इसका तर्जुमा ये भी किया जाता है ना, यौम हशर के मालिक, यौम आखिरत का मालिक, तो असल में उस दिन बदला दिया जाएगा, तो इसलिए इसको बदला, असल माना क्या है, बदला। और इसका एक माना वो है जो हम आम पढ़ते हैं, दीन इस्लाम, यानी जिंदगी गुजारने का निजाम, निजाम जिंदगी। ओके, तो आइए अब जरा इसको देख लेते हैं। मालिक यौमिद्दीन, दीन के दो माना हमने क्या कि बदला, यानी अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा बदला। जो अच्छे काम किए होंगे तो यकीनन अच्छा बदला मिलेगा इंशाअल्लाह, और बुरे काम किए होंगे तो खुदा ना खास्ता बुरा बदला मिलने का डर है। तो अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सीख रहे हैं बैठे हुए, और अल्लाह से ये उम्मीद और यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका हमें अच्छा बदला अता फरमाएंगे। तो बिल्कुल खास दिन का ये देखे ना हमारी बहन ने, अब ये चीजें आपने खुद ब खुद नोट करनी है कि अलिफ लाम लगा है तो एक खास दिन की बात हो रही है, ये कोई आम यौम नहीं है। तो मालिक यौम दीन, वो खास बदला, असल में खास बदला जो है, यौम तो दिन होता है ना, तो वो खास बदले वाला दिन। तो जिंदगी गुजारने का तरीका वो दूसरा दिन है। अब जब क्यामत आएगी तो मंजर क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शय का मालिक होगा, ओनर होगा, उसकी हुकूमत होगी, वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। अभी दुनिया में भी वो मालिक है, लेकिन उसने बहुत से मामलात हमारे हाथों में दिए हुए ना, काजी होते हैं, जज होते हैं, आपस में आप तस्फिया कर लेते हैं, कोई जुल्म करके फिर भी बच जाता है, कोई किसी को लगता है कि उसको अजर नहीं मिल रहा उसकी नेकियों का, लेकिन उस रोज जो है सारे का सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास होगा, कोई चीज उसकी आंख से ओझल नहीं होगी, कोई ऐसा मामला, जर्रा बराबर की हुई नेकी और बुराई जो है उसका बदला मिलेगा। तो इंसानों को भी इख्तियार मिला हुआ है, उस दिन ये सारे इख्तियारात खत्म, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहेंगे, जैसे कुरान के अल्फाज हैं, उसको सिफारिश की इजाजत देंगे। दिन बड़ा खतरनाक होगा। कुरान पाक के अंदर ही सूरा वो है ना अबस व तवल्ला में आता है कि इंसान को वो अपने अपने माँ बाप, बहन भाई, बेटा, जिनको जिंदगी में जिनकी खातिर मरा जा रहा होता है, बच्चों की खातिर, उनको भी देखकर भागेगा, उसे अपनी पड़ी होगी। इतना खौलनाक दिन होगा, है ना। सो यौम यफिरुल मर'उ, उस रोज इंसान को क्या होगा, अपनी पड़ी होगी हर एक को। वो ऐसा दिन है, बड़ा खतरनाक खौलनाक दिन होगा, सबको अपनी फिक्र पड़ी होगी। तो उस रोज जब बदला मिल रहा होगा, उस रोज का मालिक कौन है, अल्लाह है। तो अल्लाह से हम उम्मीद क्या रखें कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर तो रहम फरमाएगा, लेकिन डर भी हो कि अल्लाह कहीं हमें सजा ना मिल जाए। हमारी आदतें उस हिसाब से, हमें अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ से आदत अच्छी हमने क्या सीखी, 6 आदतें आप पहले सीख चुके हैं, इससे पहले 7वीं आदत जो है ना अब हम सीख रहे हैं, वो क्या है, यौम आखिरत को जहन में रखे, बदले के दिन को जहन में रख कर हर काम करें, और उस दिन की तैयारी में वक्त जाया ना किया जाए। वो दिन किसी लम्हा भी आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है, हम किसी लम्हा भी, एक सेकंड में भी इस दुनिया से जा सकते हैं और ये मामला शुरू हो जाएगा। लिहाजा आज ही से, और ये बड़ा जबरदस्त कुलिया है, ये बड़ी जबरदस्त टिप है जिंदगी को संवारने की। अगर आप कुछ भी करते हुए ये सोच लें कि इसके बदले में आखिरत के दिन मेरे साथ क्या मामला होगा, क्या मैं वहां शर्मिंदा होऊंगा, या क्या मैं वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि अल्लाह मैंने वो नेकी का काम किया था, उस वक्त मैंने खलूस से ये किया था, उस वक्त मैं किसी पर गुस्सा होने से रुक गया था, मैंने गीबत नहीं की थी, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने तेरा कुरान पढ़ने के लिए वक्त दिया था। तो हर काम करते हुए आखिरत को सामने रख लीजिए, इंशाल्लाह बेहतरीन काम होंगे, और उसकी तैयारी में वक्त को ज़ाया मत कीजिए। आइए अब आप सब इसको पढ़ लें, 15 सेकंड्स आपके लिए, आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम जी। सो अब आगे चलते हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह जो अगली आयत मुबारका है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। अब आइए जरा हम देखते हैं कि
या का अल्फाज के टुकड़े देखते हैं। ब्रदर अतर, चूंकि हमारे पास हर क्लास का एक खास सीक्वेंस है तो ये मुमकिन नहीं होता। आपने पहले देखी हुई है, क्विकली चलें, आप मेरे साथ रिपीट कर लें। 6 ये कह रहे हैं जी 6 पिछली आदात जो हैं उनको रिपीट किया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था? बिस्मिल्लाह, हर काम तावुज़ में कहा था अल्लाह की पनाह में आया जाए। जब भी आप कुरान पढ़ें तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, तावुज़ पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 2, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर हर काम को शुरू करें। रहमान और रहीम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि रहम किया जाए। फिर हमने पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें, उसकी तारीफ को याद रखें और इल्म हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ आप अच्छी तरह से कर सकें। और फिर लोगों के साथ रहम वाला मामला करेंगे तो आपके साथ भी रहमत का मामला होगा। तो ये सारी अच्छी आदतें हमें आनी चाहिए। आज 7वीं आदत हमने क्या सीखी कि कुछ भी करते हुए आखिरत को मद्दे नजर रखें। तो अब यहाँ पर आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इय्याका तेरी ही। अब इसमें इय्या अलग लफ्ज है जो स्ट्रेस के लिए, एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में भी एम्फेसिस करना हो तो हम कहते हैं ना आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। एक तो होगा ना आप मेरी मदद करें या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब हमने अपनी बात में जोर देना हो तो हम कहेंगे नहीं आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरह अरबी में इया ही के लिए, स्ट्रेस के लिए, एम्फेसिस के लिए, बात में वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर ये का तकिया आया है। ये जो का है ना, का मतलब होता है तेरी ही। आज इंशाल्लाह आप इसको समझ भी जाएंगे कि क्या ये का जो है ये क्या चीज है। असल में ये जुमले के शुरू में नहीं आ सकता, इसको अकेले शुरू में नहीं आप कह सकते का नाबूदू कि तेरी हम इबादत करते, नहीं। तो इसको सपोर्ट देने के लिए, इसकी मदद करने के लिए इया आ गया। स्ट्रेस भी बन गई, बात भी सही हो गई। सो इया का तेरी ही। तो जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि जुमले के शुरू में अकेला नहीं आ सकता, इया ने आके इसको तकिया फराहम किया, इसको सहारा दिया और ये बन गया इया का तेरी ही या तुझ ही से। तो तेरी ही नाबुदू, नाबुदू हम इबादत करते हैं। और नाबुदू के अंदर जो लफ्ज नाबुदू है उसमें आपको आइन बा और दाल नजर आ रहा है। जो इबादत का लफ्ज आम है उर्दू में, आबिद इबादत करने वाला, मबूद अल्लाह को कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। तो नाबुदू हम इबादत करते हैं और वाह या का। लेकिन उससे पहले इबादत में ये जरूर देख लें कि इबादत में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो हम रोजाना ही नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब इबादत के मामलात हैं। अल्लाह की तरफ दावत देना, नसीहत अच्छी करना, जहाद यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म का हासिल करना भी इबादत है। कमाना, अभी देखिए कैसा खूबसूरत दीन है कि आप कमाई करें, आप रिस्क कमाएं अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये भी इबादत। हाँ, ख्याल क्या रखें, सिर्फ नीयत सही हो। अगर आपकी हलाल कमाने की नीयत है और है अल्लाह मैं अपने खानदान के लिए अच्छे असबाब के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो फिर वो इबादत है। वगरना तो अगर आपने दिखावे के लिए नमाज भी पढ़ी तो उसको भी जाया कर दिया। तो हर चीज अल्लाह के लिए, हर चीज में शर्त क्या, नीयत ये रख लें कि अल्लाह मैं जो कर रहा हूं, मेरी जिंदगी का हर काम और मामला तेरी रजा के लिए हो। दूसरों की खिदमत करना है ना। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे और आपको, हम सबको नसीहत के तौर पर लेनी है, वो क्या है? वो है नमाज, सलाह। क्योंकि उसके बारे में क्या फरमाया गया कि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। तो नमाज, 5 वक्त की नमाज जो है, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसके ऊपर इस्तकामत अता फरमाए कि हम अपनी 5 नमाजें वक्त पर बेहतरीन तरीके से उन्हें अदा कर सकें। तो इंशाअल्लाह ये जो आप तर्जुमा सीख रहे हैं इससे भी हमारी नमाजें बेहतर होंगी, क्योंकि नमाज दीन का सुकून है। तो और यहाँ पर हमने ये सारी इबादत तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। सारी इबादत अल्लाह के लिए। इसीलिए मुसलमान की जिंदगी का हर लम्हा, हर पहलू इबादत है। मुसलमान को ये फायदा है, वो चलते फिरते इबादत कर रहा होता है। नियत ठीक रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हर काम करे। वाह इया का, वाह का मतलब, और आपने पीछे पढ़ा ना, जब आपने पढ़ा है वाह हुआ, फा हुआ, आ हुआ, तो वाह। और तो ये अल्फाज के माना आपको अब ज़हन में रख लेने चाहिए, बार बार आएंगे। वाह जो है सैकड़ों बार कुरान के अंदर आपको नजर आएगा। तो
जी सिस्टर आमना भी बताते हैं ना का माना भी व इया का, और तुझ ही से, इया का फिर तुझ ही से, फिर काफ आ रहा था ना आगे, तो उस का के साथ ये इया लगकर उसको उसने सहारा दिया, और तुझ ही से असल में ये वही है, तेरी ही, ये उर्दू की वजह से हम इसको यूं तर्जमा कर रहे हैं कि तेरी ही हम मदद चाहते हैं, लेकिन उर्दू में ज्यादा अच्छा यूं लगेगा तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। तो इया का तेरी ही, वाइया का और तुझ ही से, नस्ताइन, ये देखें वा और फा के माना ज़हन में रखना, जैसे कि मैंने अभी कहा अक्सर अल्फाज के शुरू में आएंगे वा और, फा का माना क्या बताए आपने से, कोई चैट बॉक्स में लिखें क्या पढ़ा हुआ है आपने इसका माना। माशाल्लाह, बस ये पक्के कर लेने हमने, वा और फा का माना बस, ठीक है। नस्ताइन, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। तो लफ्ज नस्ताइन को अगर आपने ज़हन में बैठाना है, अच्छा सा याद रखना है, तो उसके लिए उर्दू में हम कहते हैं इस्तानत करना, इआनत करना, ऑन मदद करने वाला, ताउन भी मदद करने के माना में, तो माउन मदद करने वाला, तो ये सारे मदद के माना में उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज से आप नस्ताइन का लफ्ज जो है ना, खासतौर पर इस्तानत, जी मुआवनत भी बिल्कुल मदद के लिए होता है, दर कमर से ही फरमा रहे हैं। सो नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, तो इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तुझी से हम मदद चाहते हैं। तो अभी हमारी बहन पूछ रही थी कि इसमें ना का क्या माना है, आइन बा दाल तो इबादत के लिए हो गया, इसी तरह नस्ताइन वाले में इस्तानत तो वो तो हो गया मदद के लिए, तो बाकी नून जो है ना, ये जो नून है ना जो बना हुआ है, ये है हम, इसका माना है हम, ठीक है, जमा का। तो नाबुदू व नस्ताइन, और इंशाल्लाह आगे जो कोर्स में चलते जाएंगे आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसके हवाले से भी सीखेंगे कि ये ना कहाँ आता है और कैसे आता है, ठीक हो गया हम। लेकिन इसके टुकड़े नहीं आप कर सकते, ये आपको वैसे एक कॉन्सेप्ट बताया गया, इंशाल्लाह आगे जाके इसको हम और बेहतर सीखेंगे। आइए अब इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात के अंदर, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को तो पैदा नहीं किया सिवाय इस काम के लिए कि वो इबादत करें मेरी, कि वो इबादत करें। अब आप ये देखिए कि हमारी तख्लीक का मकसद ही इबादत है, तो अब इंसान बाजू का सोचता है कि या अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि मैं हर वक्त इबादत करता रहूं, मुझे तो जिंदगी के बड़े काम करने हैं। तो उस वक्त ये ज़हन में रख लीजिए कि बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत आप ये सारे काम कीजिए अच्छी नीयत के साथ, अल्लाह को ज़हन में रखते हुए। आप उठाकर पानी पीते हैं, आप बिस्मिल्लाह कहते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ये तेरी नेमतें हमें मिल रही हैं। तो इबादत, और इबादत खास इबादत जब कर रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल कि अल्लाह के हुक्म पर चला जाए, उसकी नाफरमानी से बचा जाए। तो आप जिंदगी के काम करते हुए झूठ से बच जाइए, कोशिश करें झूठ ना बोलें, आप धोखा ना दें, आप दरोगोई ना करें, आप गीबत ना करें, आप किसी की कोई ऐसी बेहयाई वाली बात ना करें। तो इबादत ही इबादत है जिंदगी में। इस्लाम तो बड़ी आसान मामला है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। तो अल्लाह को एक जानना सबसे बड़ी इबादत, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना, इल्म हासिल करना, जैसा कि पहले मैंने कहा इबादत हलाल कमाई कमाना और दूसरों की खिदमत करना। तो वो दूसरे आपके चाहे वालिदैन हैं और आपके बच्चे हैं और आपके इर्द गिर्द वाले रिश्तेदार हैं और हमसाए हैं और तमाम मुसलमानों और इंसानियत है। तो अब जरा गौर कीजिए कि इबादतें सब अल्लाह के लिए, तो हर काम में अल्लाह ही की मदद। क्यों? उसकी वजह ये है, हमारा कमजोरी का ये आलम है कि अगर अल्लाह मदद ना करे और यही सांस रुक जाए तो मैं हाथ बढ़ाकर इस ग्लास को नहीं पकड़ सकता पानी पीने के लिए। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये कुव्वत दी, ये सांस चल रहा है, हाथों में ये तवानाई है, तो मैं इसको उठा सकता हूँ और मैं पी सकता हूँ। तो अल्लाह की इबादत जैसा बड़ा काम वो भी उसकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है ना। उसके लिए भी उसी की मदद मांगी जाए। इया का नाबुद, हम तेरी इबादत करते हैं और उस पर भी तेरी मदद चाहते हैं, तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद, और ऐसी इबादत जो तुझे पसंद आ जाए। तो यहाँ से आइए अब अल्हम्दुलिल्लाह
हम आदत नंबर 8 पहले, हर काम में नियत इबादत की, हर काम में नियत इबादत की। तो इंसान के आपको पता है 2 हिस्से हैं, ये एक ये जिस्म है ज़ाहरी जो नजर आता है और एक रूह। तो जिस्म को हमारे खाना पीना चाहिए होता है, रूह को इबादत चाहिए होता है। असल जो फलसफा है ना, ये आजकल दुनिया वालों ने अजीब भी गलत से फलसफे बनाए हुए हैं। रूह का सुकून और इत्मीनान अल्लाह की इबादत में है, आपके पुरसुकून सजदों में है, आराम सुकून से नमाज पढ़ने में। तो जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं की जाती उसको सुकून नहीं मिलता। बाद लोग कहते हैं नहीं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं आ रहा। अगर आप धड़ाधड़ बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बाजू का हम ऐसे नमाज पढ़ रहे होते हैं कि जैसे नमाज से जान छुड़वा रहे हैं। तो आराम से इत्मीनान से सुकून से इंशाल्लाह नमाज पढ़िए, और अब जब आपको तर्जुमा आएगा आपको खुद ब खुद आराम से नमाज पढ़ेंगे और अच्छे इत्मीनान के सजदे करेंगे तो यकीनन आपको मजा आएगा। और अगली आदत जो है, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। आपको पता है, आपने हदीस सुनी होंगी कि नबियों ने, अल्लाह के नबियों ने, छोटा काम था ये बड़ा काम था, उन्होंने कहा अल्लाह से मदद मांगी। उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा, ये मशहूर हदीस है, या बदिउस समावात या हय्यु या कय्यूम इन्नी अस्अलु, तुझ ही से मांगता हूँ। हर काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगिए। वो सारी दुआएं सीखिए जो अंबिया ने मांगी हैं, और वो चूंकि बेहतरीन अल्फाज है, अल्लाह ने उन्हें पसंद फरमाया, उनकी दुआएं कबूल हुई। तो चाहे हज़रत आदम की दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगिए, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। अब आप पढ़ लीजिए, आपका वक्त है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्फाज के टुकड़े करके देखिए, इसके माना को गौर से देखिए, और याद रखने के लिए जो आपको मिसालें दी जाती हैं उन मिसालों से ज़हन में रखा कीजिए। आप खुद भी कोई ऐसी मिसालें नमाज की जो आपके जहन में है, जिनसे आपको अल्फाज याद रहते हैं, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीखने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। और अल्लिम, सिखाइए एक दूसरे को। और प्लीज जब ये आपको वक्फा दिया जाता है तो इतना ऊंचा बोलें आपके अपने कानों में आवाज जरूर पड़े, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। इतना ऊंचा खुद को बोलें। अब आप अगर अभी दोहराई करें तो आपके या का, ही का, तेरी ही, नाबूदू, हम इबादत करते हैं, कि आपके अपने कानों में आवाज पड़ रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं हमने अच्छा, आपको पता है ना, आपको हमने वोकैबुलरी शीट भेजी हुई है, पॉकेट बुक, आप चाहे उसका प्रिंट ले लें। और जिन लोगों ने हार्ड कॉपी मंगवा ली है, ये बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी है, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और इसमें यही अल्फाज के आगे माना लिखे हुए हैं। जब कभी वक्त मिले, नमाज, खास तौर पे नमाज के बाद निकालें, एक नज़र देख लें लेसन वाइज। और जब मैं सीख रहा था तो मैं अक्सर इसको अपने पास गाड़ी में भी रख छोड़ता था। जब कभी, अभी भी मेरी गाड़ी में अल्फाज मानी वाली एक पूरी वो पड़ी हुई है, तो आप ये अपने पास इंशाल्लाह रखें। मेरी बहनें जो है अपने बैग्स में रख लें, तो ये बहुत फ़ायदा देगी। इससे इंशाल्लाह चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपको याद रहेंगी और भूलेंगी नहीं, ठीक है जी। तो ब्रेक का वक्त है, आपने अगर सवाल पूछने हैं तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे। जी, ये कौन पूछना चाह रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ? जी काशा, फरमाइए। जी अपन म्यूट है, आप बोलें। चलें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद हाशिर, फरमाइए। खुद को अनम्यूट कर लें। मोहम्मद, अच्छा, हुजैफा नासिर, आप फरमाइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی جی پوچھیے. مڈ ٹیسٹ کے بارے میں. جی مڈ ٹیسٹ کے بارے میں. مڈ ٹرم کے بارے میں. جی جی. ابھی بیٹے وہ بہت دور ہے, ابھی آپ کلاسز پڑھیے, انشاءاللہ جب آئے گا آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. آئی فون 12 پوچھیے, کوئی سوال ہے تو. جی قمر نعیم صاحب. سر یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی مالک یوم الدین, اس میں یوم کا تو اسم تھا, الدین بھی اسم تھا, تو مالک کا میں نے کچھ نہیں لکھا, یہ کیا ہے گرامیٹیکلی؟ ہاں سسٹر, اس پر آپ کو علامت نظر نہیں آئی, لیکن وہ بھی اسم ہے. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یہ اس کا بھی ذکر نہیں کیا. اسم ہے. جی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی وہ بھی اسم ہے, لیکن یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں میرا خیال ہے کلاس شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر کے حصے میں انشاءاللہ آج ہم ضمائر پڑھنے جا رہے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی ضمائر پڑھے ہیں. یہ جو آپ کہتے تھے نا, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, یہ بھی ضمائر ہی ہیں. ضمائر یعنی اسم, اور انگلش میں انہیں پروناؤنس کہتے ہیں, ہے نا. اور یہ بھی ضمائر ہیں. یہ ضمائر کی ایک اور قسم ہے, اس پر آگے بات کرتے ہیں. آئیے ذرا گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کرنے کے لیے ہم نے کون سے اشارے کہے ہیں سنیے. آپ سب بھی ذرا میرے ساتھ فریش ہو کے اور یہ ذہن میں لا کر کہ یہ میں سارے اشارے قرآن کو سیکھنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس لیے دل سے کیجئے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دکھائیے, دل سے کیجئے, اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے پورے حواس اور احساسات کا استعمال کریں گے انشاءاللہ, اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے. اور خاص طور پہ آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ آپ نے اسم کی نشانیاں جو پڑھی ہیں, اور آج مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں کو یاد بھی ہے, اور آپ نے فوری کہا کہ جی یہ اسم ہے کیونکہ دو پیش آ گیا ہے. الدین جیسے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی, الف لام سے انہیں پتہ چل گیا اسم ہے. اسی طرح دو زبر آ جائیں یا دو زیر آ جائیں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے, اور اس کی جمع میں واو نون اور یا نون پایا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ دو پیش سے بنے تو واو نون, دو زبر یا زیر سے جمع بنے تو یا نون پایا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی کل کی دہرائی. ہم انشاءاللہ ہر کانسیپٹ کی اتنی دہرائی کیا کریں گے کہ آپ کو وہ یاد رہے گا, اور کورس کے آخر تک انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. تو ہم نے جو اسم پڑھے تھے, یہ کن کو, آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی, باقی سب کو آ رہی ہے, آپ اپنے اینڈ پر چیک کیجیے. تو یہ جن کی آواز نہیں آ رہی ہے, کٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو پلیز آپ اپنے آپ کے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے, ہاں یہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہیں سب کو آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو اسم ہم نے کل پڑھے تھے مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک اور منافق. تو یہ سارے عام اردو میں استعمال ہوتے ہیں, آپ کو ویسے بھی پتہ ہیں یہ سارے. اور اس کی ہم نے جمع بنانے کا ایک قاعدہ آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا, مسلمون سے مسلمون اور مؤمنون سے مومنون. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات میں نے آپ کے ساتھ دہرائی بھی ہے کہ یہ دو پیش کی وجہ سے واو نون والی جمع بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہاں جو ہے دو زبر زیر کی وجہ سے یہ ساری یا نون والی جمع ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ سارے یا نون. تو یہ چونکہ ہم کل پڑھ چکے ہیں, اور ہم اسے جمع سالم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو پورا لفظ ہوتا ہے نا, اوریجنل لفظ ہوتا ہے. یعنی یہ دیکھیں اس میں یہ مسلم پورے کا پورا مسلمون میں آ رہا ہے. یہ مسلم جو ہوتا ہے نا سنگولر,
یہ پورا مسلم کے بعد آگے یہ واو نون ایڈ ہو رہا ہے, تو مسلمون. اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے جس میں اس کی سنگولر پورے کا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے. تو سالم اردو میں سالم کہتے ہیں نا, ثابت پورے کا پورا, اس کو, تو اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. واو نون یا نون آخر میں لگتا ہے اور اصل جو اسم ہوتا ہے وہ پورا اس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے اب اس سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. اس کے لیے ہم نے عربی کے الفاظ, یہ سارے عربی کے الفاظ سیکھ لیے. اب ہم جو ہے نا, جیسے انگلش اور اردو میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا, اس کا, ان کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا, یا انگلش میں جسے پوزیسو کیس کہتے ہیں, تو ہز, ہر, ہے نا, یور, مائن, تو اس طرح سے. تو عربی میں آج انشاءاللہ وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ میرے ساتھ اشارے کریں گے, ہم اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اور یہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. تو اگر تو آپ باوضو قرآن آپ کے پاس نہیں پڑھا ہوا ہے تو ابھی آپ بڑی مزے کی چیز انجوائے کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے. آئیے, ہو وہ تھا نا ہوا, اب ہوا نہیں کہنا, ہو اس کا, ہو اس کا. ہم, یہ ہم کی طرح ہی ہیں جو پہلے آپ نے ہم پڑھا تھا. فرق یہ ہے وہ ہم الگ سے اکیلا قرآن میں آئے گا, یہ ہم جڑ کے آئے گا. یہ ضمائر سارے جڑ کے آتے ہیں, الفاظ قرآن کے دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ جڑ کے آتے ہیں. تو ہم ان سب کا آپ کا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کا دیکھا تھا نا, یہ وہی کا ہے, کا آپ کا, یہ میرا, یا کے نیچے زیر, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. تو آسان ہے نا, مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے. آئیں پھر ایک دفعہ کرتے ہیں, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں آپ کے سامنے عربی بولوں, آپ اس کے اشارے کریں, تو ہو, ہم, کا, یہ, تم, نہ. صحیح اشارے کیے یا الٹ پلٹ کر دیے آپ نے؟ اچھا چلیں, میں ایک دفعہ پھر اشارے کروانے لگا ہوں, سوچ کی ذرا صحیح کر رہے ہیں آپ اشارے. ٹھیک ہے, تم, یہ کتنے لوگوں نے غلط طرف اشارہ کیا, تم کا تو آپ نے ادھر کرنا تھا. آپ نے وہ مکینیکل رٹے والے اشارے نہیں, سوچ کے جواب دینا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں پھر کرنے لگا ہوں چیلنج آپ لوگوں کو. یہ جتنوں نے ایک انگلی سے اپنی طرف کیا تو وہ ٹھیک کیا, یہ میرا. چلیں آئیے ایک دفعہ پھر مل کے دہراتے ہیں, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. یہ کوئی عام اشارے نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں ہزاروں بار قرآن میں یہ آئے ہیں. ذرا یہ سوچ کر یہ اشارے کریں کہ آپ کی اتنی اچھی پریکٹس ہو کہ آپ کے یہ اشارے ہزاروں بار قرآن میں آئے. ابھی آپ نے قرآن اٹھانا ہے, الحمدللہ ان کو سیکھنے کے بعد قرآن کی ہر لائن سے آپ کا تعارف ہو جانا ہے. یہ جڑ کے آتے ہیں الفاظ کے ساتھ. ابھی ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے. تو چلے آئیں پہلے آپ لوگ اس کی پریکٹس کروائیں. کون کرائے گا؟ سسٹر نور فاطمہ نے پہلے سے ہاتھ کھڑا کیا تھا, کروائیے, انمیوٹ کر کے پریکٹس کروائیے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہاتھ ہلانے ہیں سب نے, یہ نہیں ہے کہ بغیر ہاتھ ہلائے بس ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ نہیں کرنا, پھر صحیح یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سسٹر فاطمہ گول کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم ان سب کا, آپ سب کا, نہ ہمارا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. حذیفہ ناصر کروائیے. ہو ان کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ماشاءاللہ. محمد حاشر کروائیے.
हूँ उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। सिस्टर ताहिरा जमील आप करवाइए, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ उसका, हुम उन सबका, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह सिस्टर, बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने इसको करवाया। और अब ये देखिए कि इसको हमने, ये देखें, ये कुरान के अंदर आपको कुरान की कुछ लाइनें दिखाई जा रही हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही, ये अब्दी के बाद जो ही है ना, ये असल में वही हु है। इसको ही भी पढ़ सकते हैं, हु ही, एक ही माना होता है उसका, अब्दी ही उसका बंदा, ही। अगली वाली लाइन में फिर देखें, वलम यजअल लहू, ये देखें लहू, ये वही हु लगा हुआ है, हु लहू उसके लिए। ला का माना आपने पहले पढ़ा था ना, हु उस, और हु उसका उसके लिए। और आगे देखें लदुन हु, फिर आ गया हु। ये कितनी ज्यादा कुरान में आ रहे हैं। नीचे देखें क्या है, लहुम उन सब के लिए, लहुम हुम आ गया। यानी कुरान में 10,000 से ज्यादा बार हैं, ये 10,000 से ज्यादा बार। तो अगर हम फिर भी नहीं सीखें, हमें तो बहुत शौक से ये इशारे सीखने चाहिए। अब आप कुरान उठाएं, मुमकिन ही नहीं है आप कोई भी पेज खोलें, कोई भी पेज खोलें, ये लाजमी वहां है। बल्कि पेज तो क्या, तकरीबन हर लाइन में चलें, थोड़ा बहुत वो हो सकता है। अभी मैंने खोला तो आया है याबुदु आबाउहुम, हुम, ठीक है जी। और उसके साथ ही आगे जगह जगह नजर आ रहे हैं, आगे साथ ही लिखा हुआ है फी ही, और आगे लिखा हुआ है बैनहुम इन्नहुम, और फिर आगे हुआ है अमालहुम, और फिर इन्नहु। तो ये सारे इसके अंदर नजर आना शुरू हो गए हैं। अलैका का, तो ये इंशाल्लाह यूं आपने अब ये कुरान के 10,000 बार से ज्यादा इनका इस्तेमाल है। तो आपको बहुत मुबारक हो कि आज आपने सीख लिया है। अब टीपीआई के साथ हम इसको शौक से करते करते पहले किसी इसम से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि कुरान के अंदर आपको ढूंढने में भी आसानी हो कि ये कैसे जुड़कर आए हुए हैं। तो आप देखते हैं, पहले यहाँ पर देखिए, रब एक लफ्ज है। रब हमने पहले इसका माना पढ़ा है बड़ी डिटेल से कल की क्लास में। रब पालने वाला, कैसे पालने वाला, हर चीज देने वाला, मखलूकात को पालने वाला। तो रब के साथ हम इस सारे टेबल को मिलाते हैं, देखें जुड़कर, रब्बुहु उसका रब। अब ये हु और रब, रब्बुहु, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है जी, आसान है ना ये। तो ये अब देखें वही जुड़ गया और ये आपका एक्सप्रेशन बनना शुरू हो गया। तो सबसे पहले उमामा अयाज करवाइए बेटे। रब्बुहुम उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत वेरी नाइस। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ जरा नए नए लोगों को चांस दें। जो लोग पहले कर चुके हैं कोशिश करें वो जरा दूसरों को भी चांस दिया करें, है ना। सिस्टर महानूर खान करवाइए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने। और मलिक मोहम्मद शफीक ब्रदर करवाइए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, ये हुई ना बात, बहुत ही जबरदस्त। अब देखें तो ये आपने इशारे में, आपको फिर ये बता रहा हूँ कि जो आप जितने इशारे करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा, अब ये देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया जाए जो अभी ही वाला आया था। रब्बुहु है ना उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। तो बोलते वक्त आसानी के लिए अरब लोग जो है ना इस तरह भी बोल देते हैं, रब्बुहु की बजाय वो कहेंगे रब्बी ही। तो वही माना है, रब्बी ही उसका रब।
इस तरह रब्बुहुम की जगह कह देंगे बजाय रब्बिहिम, तो उन सब का रब। तो ये दोनों तरह से बोला जाता है, या आपने खास तौर पे ज़हन में रखना है। चलें एक एक दफा इसकी भी प्रैक्टिस करवा दें, और ये करवाते हैं सिस्टर हाजिना तारिक, करवाइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो यहाँ पे है रब्बुहु उसका रब, हाँ। रब्बुहुम इन सब का रब, दोनों तरफ बोलिए ना, रब्बुहु रब्बिही। अच्छा ठीक है, सॉरी। रब्बुहु उसका रब, रब्बिही वो भी उसका रब हो गया ना? माना है उसका रब, हाँ, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, सही है। रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बिहिम उन सब का रब। माशाल्लाह, ये देखें ना, ये कॉन्सेप्ट सारे समझे। सिस्टर ईमान आमिर, करवाइए। रब्बुहु इसका रब, रब्बिही इसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बिहिम इन सब का रब। माशाल्लाह। एक और करवाते हैं, सिस्टर फातिमा नजर, करवा दें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुही उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहिम उन सब का रब। सिस्टर एक दफा थोड़ा गौर से सुने मुझे। पहले है रब्बुहु, रब्बुहु, और इसी तरह इसी को हम रब्बी ही भी कह सकते हैं, दोनों का माना उसका रब। फिर है रब्बुहुम, और इसको रब्बी हिम भी बोल सकते हैं हम, तो दोनों का माना है उन सब का रब। ठीक हो गया? अच्छा, ये भी सीख लिया हमने। आइए अब जरा अरबी बोलचाल में इसी चीज को हम अरबी बोलचाल में लेके आते हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ बड़ी मजे की चीज होगी। अब आज आपको खुद ब खुद आपके ज़हन को चाहिए कि वो माना बता दे। अगर मैं आपसे पूछूं मन रब्बुहु, मन रब्बुहु, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या आप सबको इसका माना ज़हन में आ गया है? मन रब्बुहु अगर आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अरबी आनी शुरू हो गई है। मन आपने पीछे पढ़ा था ना, हमने सवालिया है, और रब्बुहु आज पढ़ा है, रब्बुहु। हाँ, तो जरा बताएं, कौन बताएगा इसका माना क्या बना मन रब्बुहु? हाँ, अनम्यूट करके कोई बताए आपने से मुझे। उसका रब कौन है? वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो अब जवाब में हम क्या कह रहे हैं? रब्बुहु, रब्बुहु हुल्लाहु जोड़कर पढ़े तो यहाँ कह दे रब्बुहु अल्लाह, मन, या अल्लाह रब्बुहुम, दोनों तरह, तीनों तरह जवाब ठीक है। तो मन रब्बुहु रब्बुहुल्लाहु, मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाहु। जब उन सब का रब पूछा गया तो उसी तरह हमने जवाब दिया रब्बुहुमुल्लाहु। तो आपने साथ ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएं कि जब थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है, कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में, अगर देखे ना, मैंने यहाँ से पूछा कि सऊदी अरब के बादशाह के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो जो यहाँ नहीं है, तो जवाबन भी आप उसी का नाम लेकर ही कहेंगे कि हाँ वो ये काम कर रहा है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे सामने मौजूद हैं, और मैं अगर आपसे कहूं मन रब्बू का, अब आप क्या जवाब देंगे? मन रब्बू का, बताइए। सब लोग चैट बॉक्स में लिखे ना आप, मन रब्बू का, आप जवाबन क्या कहेंगे? हाँ, माना भी बिल्कुल ठीक है, और आप कहेंगे रब्बी अल्लाह। अब देखिए, ये अब आप अरबी के सवाल जो आप शुरू कर दिए आपने। किसी को पता है ये सवाल के, ये कौन सा सवाल है भला? मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। ये हम सब ने पक्का करना है इस सवाल और जवाब को। हाँ, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा हमसे, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह के फजल से अरबी में जवाब देंगे और हम कहेंगे रब्बी अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ इंशाल्लाह हमारी गवाही होगी कि अल्लाह, हमने तेरा दीन भी सीखा था, तेरी किताब सीखी थी, अरबी सीखी थी। मन रब्बू का रब्बी अल्लाह। चलें जरा, मन रब्बू का रब्बी अल्लाह। और अगर आप सबसे मैं पूछूं यूं आप करके, मन रब्बुकुम, क्या जवाब देंगे? आप चूंकि सबसे पूछ रहा हूं, तो मन रब्बुकुम, आप भी जवाबन कहेंगे रब्बुनल्लाहु, रब्बुनल्लाह। जमा तो हो गया ना, रब्बुना, हमने कहा था हम सब का रब अल्लाहु अल्लाह है। ठीक है? चले, अब आप में से मैं दो लोगों को इकट्ठे जो है अनम्यूट करूंगा, नाम दूंगा, वो अनम्यूट हो और एक सवाल करेगा, एक जवाब करेगा। सिस्टर फरजाना, आप सवाल करेंगी
सिस्टर आमना महमूद आप जवाब देंगी. चलें. मन रब्बुहुम रब्बुहु अल्लाह. मन रब्बुका रब्बी अल्लाह. मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाह. माशाल्लाह. हाँ, आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, जोड़ कर भी. अरबी के हिसाब से आपको आता है ना जैसे कुरान पढ़ना, तो रब्बुना अल्लाहु या रब्बुना अल्लाहु, आसानी के लिए हम ऐसे कर रहे हैं. बेहतर ये है कि आप अरबी एक्सप्रेशन में उसको पढ़ लें, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे. तो आइए अब फिर एक इसम को हम जोड़ रहे हैं उसके साथ. अब हम कह रहे हैं दीनुहु. अब माना वैसे आपको आ जाना चाहिए, उसका दीन, दीनुहुम हम सब का दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन. चलें आपसे सिस्टर मारिया आपसे सवाल बाद में लेते हैं अब क्लास के आखिर में, ठीक है. चलें आप पहले ये प्रैक्टिस करवाएं ना. सिस्टर मारिया बतूरी अनम्यूट किया, आप टेबल करवाएं. सबका दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन. माशाल्लाह बहुत अच्छे. सिस्टर सकीना आप भी करवाइए प्रैक्टिस इसकी. अनम्यूट कर लें खुद को. जी आप अनम्यूट करें. अगर आप नहीं करवा रही तो फिर हम सिस्टर जुनैरा अहमद को रिक्वेस्ट करते हैं, वो कर लें. सिस्टर जुनैरा अहमद करवाइए. दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन. माशाल्लाह बहुत अच्छे, जबरदस्त. सिस्टर नाजनीन सईद करवाइए. दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन, दीनुहा उस लड़की का दीन. सर मैंने आपसे 2 क्वेश्चन थे, आप पढ़ाने एंड में क्वेश्चन एंड पे पूछिएगा. और प्लीज जितना अभी पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ाएं ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो. यहाँ नए लोग भी बैठे हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे जितना टेबल करवाया जाए उतना करें बस, ठीक है. चले. अच्छा सर सॉरी, मैं बोलूंगा सब प्रैक्टिस करेंगे, मैं समझी मैंने पढ़ना है जस्ट. जी सर मैंने पढ़ना है या मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, मुझे सॉरी समझ नहीं आ रही, आवाज कट रही है आपकी. आप कौन बात कर रही है? मुझे तो आपका नाम नहीं नजर आ रहा है. अच्छा जी चलें. तो अरबी बोलचाल में आज का नया लफ्ज है माँ. माँ का मतलब होता है क्या, ठीक है जी. माँ का क्या मतलब होता है क्या. ये जो माँ है ना कुरान में 2154 बार आया है. क्या के माना बेतहाशा दफा, इसके और माना भी है, लेकिन आज हम सीख रहे हैं माँ क्या. तो नए लफ्ज के तौर पर इसको आपने ज़हन में रखना है, माँ क्या. और इससे जो सवाल बनेगा वो भी देखें क्या है. माँ दीनू का, माँ दीनू का. तो आपने जवाबन क्या कहेंगे, दीनी यल इस्लाम. अभी आपने कहा ना दीनी मेरा दीन, दीनी इस्लाम का तुम्हारा दीन. तो दीनी यल इस्लाम या दीनी अल इस्लाम जैसे भी बोलना चाहें. माँ दीनू का, दीनी अल इस्लाम. अब ये सवाल भी आपको पता है बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें. मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, माँ दीनू का दीनी अल इस्लाम, ठीक है. माँ दीनू का दीनी अल इस्लाम. तो ये सिस्टर रेहाना कौसर और सिस्टर युसरा खटक, आप दोनों इसकी बोलचाल करवाएं. एक सवाल पूछे, दूसरा जवाब दे 3 दफा. जी. मा दीनू का दीनियल इस्लाम, मा दीनू का दीनियल इस्लाम, मा दीनू का दीनियल इस्लाम,
अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी लोग बैठे हुए ना, प्लीज जब ये करवाया जा रहे हो तो आप भी प्रैक्टिस में इशारे करें, हाथ हिलाएं, ताकि आप सबकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए और सबको ये याद भी हो जाए। तो ये देखिए पूरा अगर करना हो, मा दीनुहु दीनुहुल इस्लाम, मा दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम, मा दीनुका दीनियल इस्लाम, मा दीनुकुम दीनुनल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो ये आप बड़े मजे से खुद भी कर सकते हैं। तो ये जो हु, हुम, का, यी, कुम, ना, और मैंने आपको पहले भी कहा ये कुरान में बेशुमार 10,000 से ज्यादा बार इसके टुकड़े। तो आज आपने इशा की नमाज पढ़े, उसके बाद बैठें और कुरान खोलें, और हम घर में कभी बच्चों के साथ बैठे होते हैं ना, तो सब बच्चे कुरान लेके बैठे होते हैं, तो मैंने कहता हूँ अच्छा ये ढूंढो, ये देखो। तो ये बड़ी मजे की चीज है। आप अल्लाह के कलाम को आराम से, तसल्ली से, इंजॉय करके दिल से सीखिए और पढ़िए। तो अब ये मैंने आपके सामने खोला ना, तो अभी मुझे इसमें से टुकड़े नजर आ रहे हैं। अन्ना कुम, ये कुम बना हुआ है यहाँ पे तर्जुमे में, और लाहू, हू नजर आ रहा है, बी ही नजर आ रहा है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप इसमें ढूंढते जाएंगे तो आपको जगह जगह मिलेंगे। और ये कुन तुम, अच्छा वो तो अभी हमने, ठीक है, इस तरह ये मिन हमने पढ़ लिया हुआ है। तो बहुत सी चीजें जो हमने पढ़ ली हैं। लाहुम, हम नजर आ रहा है, ये जुड़ के आने वाला हूँ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप इसको, तो एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है, आपको इससे माना भी याद हो जाएंगे और सीक्वेंस भी। किताब को कहते हैं अरबी में, कलम भी अरबी में सा, घड़ी को कहते हैं, और जव्वाल मोबाइल फोन को। तो अगर आप कहेंगे ना किताबू का तेरी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमू का कलमी, साअतू का साअती, जव्वालू का जव्वाली, तो ये जो मोबाइल है जव्वाल अरबी में इसको, तो आप इसका अरबी का माना भी याद हो जाएगा, साथ साथ चलें अरबी की भी कुछ चीजें याद हो ना आपको, तो वैसे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस करते रहें तो ये याद हो जाएंगे। आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं कि हमने सीखना कैसे है, इस हवाले से हम रोज देखते हैं। तो आज का नुक्ता तालीम ये है कि हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, और ये करोड़ों खुलिये हमने पहले देखा था, बिलियंस ऑफ सारा, लेकिन ये काम कैसे करता है। ऐसा नहीं होता कि इसमें, यानी ये मल्टीपल चीजें जो है कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है, नहीं, ये मुख्तलिफ जहतों में काम कर रहा होता है। अब इसको समझने के लिए आइए, ये जो आज आपको बात बताई जा रही है ना, आपने कुरान को सीखने के लिए ये अप्लाई करनी है, तो इंशाल्लाह आपके सीखने का और भी रफ्तार तेज हो जाएगी। अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज बोलूं, फील अरबी का एक लफ्ज है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आता हो, वो कुछ देर प्लीज चुप रहे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बाकियों को ट्राई करने दें जिनको बिल्कुल नहीं पता इसका माना क्या है, ठीक है। फील अरबी का एक लफ्ज है, ये आपके सामने जो इस पर लिखा हुआ है, मैं आपको इसके हवाले से कुछ इशारे दूंगा, आप उन इशारों से गैस कीजिएगा कि अच्छा ये क्या चीज हो सकती है, ठीक है। तो तैयार है आप फिर, और गैस करके प्लीज जिनको नहीं पता वो बताएंगे, जिन्हें पता है अगर उन्होंने बताया ना तो बहुत बुरी बात है, फिर आप, इसका मतलब आप उस्ताद की बात भी नहीं मान रहे, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि इसकी आवाज जो है ना जरा ग्राउलिंग ग्रफ सी होती है, ओके। ये हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं फील, तो इसके स्पेलिंग्स जो लेट से उर्दू में है वो हे से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में है वो ई से स्टार्ट होते हैं। ये बड़ा सा होता है, बड़ा सा, बहुत बड़ा जानवर है ये, ठीक है, और बच्चों को बड़ा पसंद होता है, बड़ा मजे का लगता है, और इसके बारे में एक कहानी भी है कुरान पाक के अंदर, और जरा स्मेल इसकी बुरी सी होती है कि ज़ाहिर है इतना बड़ा होता है तो अगर पानी में ना जाए तो बहुत ही गंदा रहता है। अच्छा, अगर आपको अभी भी ज़हन में कुछ लोगों के नहीं आया तो आइए आपको तस्वीर दिखा देते हैं। फील इसको कहते हैं जी, ये अरबी में इसको फील कहते हैं। अगर अभी भी आपको और भी कोई कसर रह गई है तो आइए हम चलते हुए आपको उसको देख लें, ये लें, अब इसके बच्चे को भी देख लें, अब तो सारी जिंदगी ये नहीं भूलेगा ना आपको, है ना, माना। बस यही तरीका है सीखने का एक और, यानी जब आप किसी चीज को सीखना चाहें उसको हर तरह से अपनी मेमोरी के अंदर लाने की कोशिश करें, ठीक है, तो फिर वो कभी भी पक्का हो जाएगा आपके जहन में, कभी नहीं भूलेगा, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज हमने कुरान में
آنے والے 33 الفاظ ہو گئے. ہم نے 6 آج ہم نے ایڈ کیے ہیں، اس سے پہلے 13 اور پھر اس طرح سے، تو 33 الفاظ جو قرآن میں 12,000 سے زائد بار آئے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو. اور کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ تلاوت اور قرآن سے دیکھ کر بھی، زبانی بھی، کتاب اگر منگوا لی ہے یا سافٹ کاپی ہے وہاں سے پڑھیں، ووکیبلری کارڈ سے پڑھیں، ویڈیو دیکھ لیا کریں، اس کو سن بھی سکتے ہیں آپ. ایسے ساتھی بنائیں جن سے اس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ قرآن سیکھیں. آپ نے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا، ریگولرٹی کے ساتھ مسلسل قرآن سیکھتے جانا. اللہ سے دعا کرتے ہوئے ربی زدنی علما. اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا، اور ٹیچر بنیں گے نا جب دوسروں کو سکھائیں گے تو بہت اچھا سیکھیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.